Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. My dear students, in today's video we will discuss some problems of modulus, amplitude, argument, and we'll do our next topic, quadratic equation. So now our first problem is z is equal to 1 plus cos alpha plus iota sin alpha. Then find its modulus and also augment, either you can say amplitude. So first of all, dear student, हम क्या लेंगे, z is r cos theta plus iota r sin theta. हम z को पुट करेंगे r cos theta plus iota r sin theta. Then equating both sides, r cos theta iota sin theta is 1 plus cos alpha plus iota sin alpha. Clear? Now equating real and imaginary both sides, equating real and imaginary parts both sides. So r cos theta is 1 plus cos alpha and r sin theta is sin alpha. Clear? Now squaring and adding, on squaring and adding vertically so r square cos square theta r square sin square theta is 1 plus cos alpha whole square sin alpha whole square. अब आपको पता है, अगर आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यू नो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. सो आर स्क्वायर इज, मैं इसको भी साथ लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. तो यू नो ये भी 1 होता है, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 कोस अल्फा. तो आर स्क्वायर इज 2 is common, 1 plus cos alpha. Now dear student, अब आप क्या लेंगे, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और 1 plus cos alpha होगा 2 cos square alpha by 2. 2 2's 4 cos square alpha by 2. And you know ये किसका होल स्क्वायर है, 2 cos alpha by 2. तो r क्या आ गया अपने पास, 2 cos alpha by 2. So modulus is 2 cos alpha by 2. अब आप निकालेंगे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. सो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड. तो डिवाइड द टर्म ऑफ साइन बाय कोस, यानी r sin थीटा अपॉन r cos theta sin alpha by 1 plus cos alpha. तो यू नो साइन बाय कोस टेंजेंट, यहाँ हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. साइन थीटा, तो यू नो साइन थीटा इज 2 sin theta by 2 cos theta by 2. सो अल्फा है तो सेम रहेगा 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 and 1 plus cos alpha
2 cos square alpha by 2, तो इट इज टेंजेंट अल्फा बाय 2, थीटा tan से tan कैंसिल, थीटा इज अल्फा बाय 2। सो आपका अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो क्या आ जाएगा, r इज 2 cos अल्फा बाय 2 cos थीटा दैट इज अल्फा बाय 2 iota sin theta that is also alpha by 2. So in this way you can find out modulus and amplitude, either argument or polar form. Now next problem is argument of z conjugate is equal to 2 pi minus argument of z. So क्या होगा, argument होता क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो यू नो r इज मॉडुलस एंड हेयर जो थीटा है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z, सो एंगल होता है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है, सो क्या स्टार्ट करेंगे, लेट z इक्वल टू मैंने लिखा r इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इन पोलर फॉर्म, तो देन इट्स आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज यू नो थीटा। नाउ इट्स कॉन्जुगेट, so conjugate is r cos theta plus iota sin theta, so conjugate is r into cos theta minus iota sin theta. Now you can write cos theta को आप लिख सकते हैं cos 2 pi minus theta, और माइनस आइटा साइन थीटा को लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए आप, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट क्या आ गया स्टूडेंट, 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ z, सो आर्गुमेंट ऑफ z इज 2 पाई, z कॉन्जुगेट इज आर्गुमेंट ऑफ z, यही हमें प्रूव करना है। Clear? So in this way you can prove argument in direct or either in conjugate. Now next problem is, now we have z1 and z2 are two complex number, and also z1 plus z2 modulus equals z1 minus z2 modulus, then prove that argument of z1 minus argument of z2 is pi by 2. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सपोज करेंगे लेट z1 इज r1 cos थीटा 1 प्लस आयटा साइन थीटा 1 एंड z2 इज r2 cos थीटा 2 प्लस आयटा साइन थीटा 2। अब लेफ्ट के लिए आप लेंगे z1 प्लस z2 का, दोनों को ऐड कर लीजिए, सो r1 cos थीटा 1, इसको इसमें ऐड करेंगे तो रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं, r2 cos थीटा 2 आयोटा r1 sin थीटा 1 r2 sin थीटा 2। Now its modulus is real part square plus imaginary part square, okay। सिमिलरली राइट साइड में क्या है, z1 माइनस z2, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका z1 माइनस z2, r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2, r1 sin थीटा 1 माइनस r2 sin थीटा 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आपको?
नाउ अगर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल है डिफरेंस के, तो इनका स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो जब हम स्क्वायर इक्वल लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इन दिस वे अपने पास क्या रहेगा, R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 स्क्वायर R1 sin थीटा 1 R2 sin थीटा 2 स्क्वायर इक्वल R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 स्क्वायर R1 sin थीटा 1 minus R2 sin थीटा 2 square. Now A square plus B square plus 2AB A square plus B square plus 2AB सिमिलरली यहाँ ओपन कीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। So this one you know R1 cos स्क्वायर थीटा 1 से कैंसिल हो जाएगा, R2 इससे हो जाएगा। सिमिलरली R1 sin स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ क्या रहेगा अपने पास, इन दोनों से आप कॉमन ले लीजिए 2R1 R2 that is cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2। यहाँ भी अगर मैं कॉमन लूँ इसमें से माइनस 2 टाइम्स R1 R2, सो क्या रहेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। इसको इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। सेम है 2 प्लस 2 4R1 R2, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos A माइनस B, ये इधर आगे 0 बन जाएगा। सो वी गेट क्या रहेगा हमारे पास cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 0, और cos 0 कहाँ होता है, एट पाई बाय 2। तो ना cos से cos कैंसिल, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज पाई बाय 2। तो थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई बाय 2। Clear? Now next problem is, now we have z is x plus iota y and argument of z minus 2 minus 3 iota is pi by 4. Then prove that x minus y plus 1 is 0. So dear student, अगर हमारे पास z है x plus iota y, यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए z में क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, 2 and 3 iota, तो हम बोथ साइड ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। सो z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा x माइनस 2 आयोटा इज कॉमन y माइनस 3। क्लियर? अब इसको मैं आपको निकालना क्या है, आर्गुमेंट ऑफ दिस पार्ट। तो टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड,
ओके, मीन जिसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। एंड यू नो हाउ विल यू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज मैं इसको z1 लेता हूँ x -2 प्लस आयोटा y -3। क्लियर। तो आर्गुमेंट एक्चुअल होता क्या है, अगर अपने पास मैं इसको लेता हूँ r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इक्वेट करें हम, तो r कोस थीटा इज x -2, r साइन थीटा इज y -3। तो आर्गुमेंट के लिए हम r साइन थीटा को डिवाइड करेंगे r कोस थीटा से। तो साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज y -3 बाय x -2। तो डी स्टूडेंट यहाँ एक्चुअल में आर्गुमेंट है क्या, तो आर्गुमेंट होता है थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालिए, दैट इज टेंजेंट इनवर्स y -3 अपॉन x -2। बट आर्गुमेंट तो आपको गिवन है, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या गिवन है, π/4, और हमने निकाला है आर्गुमेंट टेंजेंट इनवर्स y -3 x -2, दोनों को इक्वल रखो। जो tan इनवर्स है ये ट्रांसपोज बनकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट π/4। एंड यू नो टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, so x minus y minus 2 plus 3 0, we have proved x minus y plus 1 is equal to 0. Now next problem is, now our next topic about quadratic equation. So dear student, you know first of all equation. What is an equation? Equation involve variable plus equality, variable plus equality means something x, y, z and equal to 0 or some values, that is called an equation. For example, x square plus x 0, x plus 1 0, 2x minus 1 0, all are example of an equation. Now dear student, after equation we have quadratic equation. So you know quadratic equation. So in quadratic equation is the types of polynomial also when we will not equate to 0. So first of all you keep in mind what is polynomial. पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं, जनरल पॉलिनोमियल। एंड सपोज a नॉट xn, a1 xn minus 1, a2 xn minus 2, and last is a raised to the power n. It is a polynomial. ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल। नाउ आफ्टर पॉलिनोमियल, और इन ए पॉलिनोमियल you know what is the power. In a polynomial, you know power is positive integer. Power क्या होगा, positive integer means 0 1 2 3 4 5। बट अगर मैंने 0 ले लिया तो हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव यहाँ से शुरू होंगे और 0 के साथ आप बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड the power of a polynomials form. Clear? Now quadratic equation. Quadratic equation means an equation with highest power is 2. For example, x square minus x plus 1 0 is a quadratic equation. कौन सा equation है ये, quadratic। यहाँ डिग्री कितना है, 2। Clear?
Now general quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक होता है डियर स्टूडेंट प्योर क्वाड्रेटिक. प्योर क्वाड्रेटिक क्या होगा? व्हेन इन इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c 0, अगर आपका b 0 हो जाए, अगर यहाँ पे b क्या है 0, मीन्स एक्चुअली कौन सी फॉर्म आ जाए आपके पास? ax स्क्वायर प्लस c. ये कौन सा फॉर्म है? प्योर क्वाड्रेटिक. क्या नेम होगा बेटे इसका? प्योर क्वाड्रेटिक. क्लियर? फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 1 0, तो इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? यू नो 3x स्क्वायर इज माइनस 1, x स्क्वायर इज माइनस 1 बाई 3 एंड x इज प्लस माइनस अंडर द रूट. तो आप आयोटा यूज कर सकते हैं 1 बाय अंडर रूट 3 आयोटा. एंड यू नो क्वाड्रेटिक हैव कितने रूट होंगे? 2. इफ डिग्री इज 2 देन रूट 2, 3 देन 3. क्लियर? नाउ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी सॉल्यूशन कैसे कैसे निकालते हैं? इन क्लास 10th में आपने किया फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर बनाते थे हम. सेकंड इज फैक्टर कौन से मेथड से बनाते थे? स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को ब्रेक करके बनाते थे. नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, quadratic formula. Clear? So we have discussed in class 10th also the solution of the quadratic equation by using 3 methods. First is factor, means splitting the middle term, completing square method, also quadratic formula. Now let us see some example. Now 9x square plus 16 0. You know 9x square is minus 16. X square is minus 16 by 9. X is plus minus under the root. And you know इसको लिख सकते हैं 4 by 3 आयोटा. क्लियर? तो ये हो गया डायरेक्ट सॉल्यूशन. इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं. तो यू नो 16 को माइनस 16 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस. तो डिस्टेंट ये है 3x होल स्क्वायर, ये है 4 आयोटा होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो क्या होगा? a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू 0. सो आइदर 3x इज 4 आयोटा, x इज 4 आयोटा बाय 3, x इज माइनस 4 आयोटा बाय 3. तो आप इसमें फैक्टराइजेशन में आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए फैक्टर बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 से हमारे 9. तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. तो यू नो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. तो यहाँ a आपका 1 है, b इज 3, c is 5. तो माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2. तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट? 9 माइनस 20, और 9 माइनस 20 कैन बी रिटन एज 11 आयोटा स्क्वायर. क्योंकि 9 माइनस 20 क्या रहेगा? माइनस 11, और माइनस को रिमूव करोगे सो माइनस 3 under root 11 iota by 2. So dear student, in this way you can find out the solution of the quadratic equation. Try to solve the exercise. If you have any problem, we will discuss in next video. Okay, stay home, stay safe.